Unit number 6, test and the measurement. This chapter is based on completely technical term based now. And I think so all type of the questions, 5 marks, 3 marks, 2 marks, and the 1 marks questions, all type of questions you can see in the examination. So I think so it's my suggestions you have to prepare for the best. All the terms which are written in this chapter, they are the technical terms. So you have to learn all these terms for the examination point of view. Test and the measurement in sports. Test, you have given the test, but the meaning of the test. The simple meanings are given in the chapter, but meanings which you know. If you will write this meaning in the examinations, marks will not be given by the examiner because the meaning is different. Meaning is given in this chapter now. Test. I will explain the term test. I'm a teacher. Suppose I want to find out the basketball potential in the classroom in the children's. I will use a test, basketball test, dribbling, shooting, 3-point, layup shot, all the skills we will perform on the children's, and after that we will select the squad. What I am doing through the test, the meaning is given. Tests are used to collect the informations about the teaching or about the specific skills in the games and the sports. दिस इज द मीनिंग. एक टीचर्स जो टेस्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर्ड कर रहा है वो इस चैप्टर में इस टेस्ट का मीनिंग दिया हुआ है. सो टेस्ट आर यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचिंग और अबाउट द specific skills in the games and the sports, whereas the measurements shows the devices or the tools where we will take the measurements of the players. Height नापना तो meter gauge, weighing machine अगर weight नापना तो they are the devices or tools where we will take the measurements of the players. Simple meanings are given, and I think so meanings, the questions will not be put about these two terms, but you must know the meaning of these two words. After that, certain tests are given in this chapter. Physical fitness component, it means strength, speed, flexibility. इनके ऊपर टेस्ट दिए हुए हैं. So first test which are given, this is the new syllabus, updated rationalized syllabus for the CBSE. First test, motor fitness test is given now. Second number test, measurements of cardiovascular fitness. 2 tests are given. Howard step and the Rockport test is given. Whereas the computations of fitness index, it means calculations of fitness index. Number 3rd and number 4th, Dickley and the Jones senior citizen test is given now. Barrow's 3-item general motor ability test was removed in the rationalized syllabus of the CBSE now. First number test. The meaning of the test is given here, whereas the first number test contents are given. Whenever the questions will put about the test, you have to use the sequence. I think so. Chemistry में जब हम एक practical file में test को लिखते हैं तो वहाँ एक sequence को follow करते हैं. जब chemistry की practical file में एक test को लिखा तो क्या sequence थी? Aim of the test, materials or the equipments required या procedures, apparatus required, conclusions, observation table, इन सबको यूज करते हुए हम टेस्ट को बड़े अच्छे से एक फाइल में लिखते हैं. सो उसी प्रकार से हमें भी इस सब्जेक्ट में टेस्ट को एग्जाम में लिखने के लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट है. बुक में दिया या नहीं दिया उससे में कोई मतलब नहीं है, पर जब हम एग्जाम में अपना आंसर्स बनाएंगे तो अंडर द हेडिंग ऑफ दीज वी विल राइट द टेस्ट इन द एग्जामिनेशंस. हमारा टेस्ट की जो हेडिंग होगी वो किस प्रकार से यहाँ पर होगी. सबसे पहला होगा पर्पस ऑफ द टेस्ट. Number 2, materials or the equipment required. Number 3, administration or the procedure of the test. And number 4, test score or result. Result, test result. Under
the heading of these four we will write test in the examinations. और I think so अगर आप सिस्टम को यूज करते हैं एग्जाम में तो आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डिफर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग प्रकार से पुटअप हुए हैं। मे बी हो सकता है किसी बुक में इतना डेप्थ और लेंथ ना हो, लेकिन अगर आप सिस्टम को यूज करते हैं तो आप अपना आंसर बड़ा अच्छा बना पाएंगे। सो वी आर रिक्वायर्ड दिस सिस्टम इन एवरी टेस्ट, यू हैव टू यूज दिस सिस्टम टू राइट द टेस्ट इन द एग्जामिनेशंस नाउ। सबसे पहला टेस्ट दिया मोटर फिटनेस टेस्ट। द फर्स्ट टेस्ट इज गिवन मोटर फिटनेस टेस्ट। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट? To measure the motor fitness oblique physical fitness of the children, we will use this test. So naturally, we can write the purpose in the examinations to measure the motor fitness oblique physical fitness of the children. This is called the purpose. Materials or the equipments required. Which materials or the equipments are required to organize the activities on the ground? Generally, in all these events, which events? These are the events in this test. In all these events, which materials are required? Commonly, we will prepare the list of these now. अगर हम देखें ग्राउंड की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने में तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है? चौक पाउडर, मेजरिंग टेप, नेल्स, रोप, वेइंग मशीन, वेट नापने के लिए वेइंग मशीन हुआ, टीचर्स के हाथ में स्टॉप वॉच एंड द विसल्स एंड द पेपर पेड एंड द पेंसिल। दीज आर द मटेरियल्स व्हिच वी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टेस्ट। सो इनकी एक कॉमन लिस्ट बनाया। सेकंड नंबर सीक्वेंस हमारी कंप्लीट, मतलब दो टेस्ट की इवेंट जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है वो हमें सिर्फ पर्पस को इस प्रकार से यूज करना है और मटेरियल की लिस्ट बनाना है, तो हमारा आंसर सिस्टमेटिक वे में बड़ा अच्छा बनना स्टार्ट होता है। नंबर थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। यहाँ पर राइटर ने टेस्ट लिखा था तो कौन कौन सी इवेंट को यहाँ पर यूज किया है वो हमें कंप्लीट यहाँ पर एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में यूज करना है। सो थर्ड नंबर टेस्ट में ये सभी इवेंट स्टेप बाय स्टेप आएंगी। इन इवेंट के डिस्क्रिप्शंस बुक में दिए हुए हैं, बट बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सब लैंग्वेज हम अगर याद करें तो हमें टाइम की रिक्वायरमेंट है, वेरएज आप इमेजिनेशन से भी बड़े अच्छे से इस क्लासरूम के इमेजिनेशन को भी ध्यान रखते हुए एग्जाम में अपना आंसर बड़ा अच्छा अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं। वर्ड कैन बी डिफर बट सेंस इट शुड बी मेंटेन इन द राइटिंग, और यही एक होता है एग्जाम का मतलब, तो हमें उसे यूज करना है और इस क्लासरूम में जो आप सीख रहे हैं समझ रहे हैं उसी को हमें एग्जाम में वर्ड्स में कन्वर्ट करना ताकि हम बड़ा अच्छा आंसर बना दें। बस सिस्टम इज रिक्वायर्ड। सो नंबर थर्ड नंबर सेक्शन में हमें ये 8 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट टेस्ट विच इज गिवन 50 meters training start. 50 meters training start. In the school life, you have performed this event. 100 meters start. उसी प्रकार से 50 meters training start है. Training start है, not setting start. Now, क्या होगा? डायग्राम्स, दिस इज द डायग्राम्स। बट अगर एग्जाम में अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाते हुए सिंपल सा स्केलेटन डायग्राम में बनाए तो काम चल जाएगा। 2 lanes आर ड्रॉन ऑन द ग्राउंड इन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ग्राउंड पर 50 मीटर डिस्टेंस पर ये 2 लाइन ड्रॉ की गई है। सो राइट द मेजरमेंट हियर 50 मीटर। Starting point and the finishing point. Here, persons will stand here properly on the line now. Teachers, they will get the start. Teachers, they will get the start as early as possible. The persons will complete the rest. The time will be taken. Time को note करेंगे. So this is the procedures of this event to organize the activity on the ground. You can write in your own words. Directions, you have to use the directions. Persons will complete the rest in a shortest possible timing, so the time will be taken now. You can write the procedures, how to organize the events or the activities on the ground. You can write in your own words. Diagram can be different. आप चाहें तो ये diagram use करें, कहीं कोई problem नहीं है। So this is the descriptions of the procedures of this event. But what we must know the purpose of this event. What is the purpose of this event? To measure the speed of the children, we will use this test. So purpose, individual purpose of this event, to measure the speed of the children, we will use this test. So ये हमें purpose पे क्वेश्चन, क्योंकि purpose को स्पेशली याद करने की या ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू में बन सकते हैं, बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। सो ध्यान रखिएगा, हर इवेंट का पर्पस आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में हम ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू में उसका आंसर लिख पाए। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर टेस्ट। सेकंड नंबर टेस्ट, 600 मीटर रन ऑफ द वॉक। 600 मीटर रन ऑफ द वॉक, 600 मीटर रन करना है तो ट्रैक इवेंट पर ये पॉसिबल है। 200 मीटर, 400 मीटर। ट्रैक दो प्रकार के होते हैं स्कूल में, जनरली 200 मीटर का ट्रैक होता है तो 3 राउंड टू बी कंप्लीट, whereas 400 अगर ट्रैक है तो 1.5 राउंड टू बी कंप्लीट। कैलकुलेट द 600 मीटर ऑन द ट्रैक, डिस्टेंस ऑन द ट्रैक। Calculate the 600 meters, 3 round to be complete. So starting point and the finishing line, both the lanes are same here. If the 200 meter track are here.
बट सपोज इफ इट इज 400 मीटर ट्रैक तो 1.5 राउंड टू बी कंप्लीट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ होता है, जो कि फिनिशिंग लाइन एक ही होती है। यहाँ 200 मीटर ब्रेक, ये फिनिशिंग लाइन हो गया, तो ये स्टार्टिंग लाइन है। अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो 200 मीटर का ट्रैक है तो स्टार्टिंग एंड द फिनिशिंग लाइन बोथ लाइन्स आर सेम। Assemble the student on the starting point. Teachers they will get the start as early as possible. The object will complete. Their subject person will complete the distance. The time will be taken. What we must know the purpose. So what is the purpose? To measure the aerobic capacity or the endurance. It means stamina of the persons or the object. This is called the purpose of this event. So this is the event diagram. अगर आप चाहें तो ये सिंपल सा डायग्राम यूज कर लीजिए एग्जाम में, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इनर सर्कल, आउटर एज को इस प्रकार से बनाते हुए एग्जाम में अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इन केस इफ इट इज 400 मीटर ट्रैक तो स्टार्टिंग लाइन 200 मीटर ब्रेक यहाँ आता है। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। दिस इज द 400 मीटर ट्रैक एंड यू कैन शो द diagram in the examinations of this event now. Now, number 3rd event, sit and the read test. एग्जाम में 3 मार्क्स में एडिशनल सेपरेट क्वेश्चंस इस टर्म पर या इस इवेंट पर आ चुका है, और ये ध्यान रखिएगा कोई भी एक टर्म 3 मार्क्स में भी एग्जाम में आ सकती है। एक्सप्लेन द 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट जो है वो 3 मार्क्स में एडिशनल क्वेश्चन के रूप में बनता है। अगर 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है तब भी हमें वही सब कुछ सिस्टम को यूज करना है। पर्पस ऑफ द टेस्ट, materials or the equipment required, administration of the procedures. Now we will use this procedures of this test and after that test score हम यूज करेंगे वहां पर, और ये सब कुछ यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बनाएंगे। Sit and the read test. पश्चिमोत्तानासन like that, जस्ट वैसे इसका प्रोसीजर दिया हुआ है। Persons will lying on the back on the ground. First of all, the persons will lying on the back on the ground. After that, the persons will sit. Legs should be straight, knees should not be bent in this now. Legs should be straight, knees should not be bent, both the legs are together. The wooden blocks are given in the diagrams. On this wooden blocks, some measurements are shown. Heel and the toe is the best. जो heel और toe है उसका वो base है, वो this is called the neutral point. Just above the heel of the knee, heel and the toe, क्या हो रहा है? Neutral points is placed and measurements are shown, plus and the minus measurement. Now the person will place the fingers on this box. If the fingers goes forward, अगर ये आगे की हो जाती है तो क्या होगा? प्लस मेजरमेंट। अगर ये पीछे की हो तो क्या होगा? माइनस मेजरमेंट। सो प्लस एंड द माइनस मेजरमेंट विल बी डन हियर नाउ। यहाँ क्या हो रहा है? रेंज या रीच को शो कर रहा है। सिट एंड द रीच को जब शो कर रहा है तो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी मेजरमेंट टेस्ट। दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी, बट इन विच बॉडी पार्ट? टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स पूरी खींचती है यहाँ से। सो टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी द टेस्ट विल डिजाइन। इन दिस टेस्ट ये सब कुछ प्रोसीजर यूज किया हम लोगों ने। प्रोसीजर्स की लैंग्वेज बुक में जो दी हुई है, अगर हम उसको एज इट इज यूज नहीं करें और अपनी लैंग्वेज में इस इमेज को भी हम एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट द पर्सन दे आर डूइंग ऑन द ग्राउंड एंड हाउ टू वे टू परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड, इफ यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो उससे भी हमारा काम चलता है। एज इट इज वर्ड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इमेजिनेशन में ये इमेजेस को बनाइए और इनसे रिलेटेड वर्ड्स अपने खुद की इमेजेस के बेसिस पर बनाइए, काम चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस सिस्टम इज रिक्वायर्ड, और सिस्टम यही बोलता है कि हर टेस्ट में पर्पस, मटीरियल और द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स एंड द टेस्ट स्कोर, इन 4 सीक्वेंस को यूज करते हुए एग्जाम में आंसर्स करना है। बट 5 मार्क्स में जब क्वेश्चन पुट अप होगा तो कंबाइन पर्पस, कंबाइन लिस्ट द मटेरियल, नंबर 3rd सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप इवेंट को लिखते हुए इनके प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना, एंड टेस्ट स्कोर, कंप्लीट टेस्ट का स्कोर किस प्रकार से निकलता है वो हमें यूज करना पड़ता है। लेकिन 3 मार्क्स में जब एडिशनल क्वेश्चन बनेगा तो हमें सिंगल इवेंट का पर्पस, लिस्ट ऑफ द मटेरियल्स विच वी आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, एंड आफ्टर दैट प्रोसीजर्स ऑफ द सिंगल इवेंट एंड द टेस्ट स्कोर, इसको कंडीशंस को यूज करते हुए एग्जाम में हमें अपना आंसर्स बनाना है। दिस इज द 3rd नंबर इवेंट। 4th नंबर इवेंट, पार्शियल कर्ल अप, क्रंचेस, सेटअप जिसे हम बोलते हैं, दिस इज द पार्शियल कर्ल अप, दिस इज कॉल्ड द हाफ कर्ल अप। Persons will lying on the back on the spine position. Spine position पे persons will lying on the back on the ground, and after that the persons will fold the knees. Knees को fold किया हुआ है. The gap between the hips and the toes just near about 1.5 foot. 1 foot or 1.5 foot. They can use this distance here now. After that, the persons will lift the body above the ground surface. ये 6 inches above the ground surface. Persons will lift the body above the ground surface 6 inches only. Now repetitions will be done. So how many it will be counted here? So yeah, this is the test. क्या purpose? What is the purpose of this test? To measure the upper abdominal strength. The test will design.
एब्डोमिनल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है यहाँ पर चूंकि स्पेसिफिकली यहाँ पर ये अपर एब्डोमिनल के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट कर रहा है, चूंकि एब्डोमिनल को तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मिडिल, लोअर एंड द अपर. सो टू मेजर द अपर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ द टेस्ट विल डिजाइन हियर. ये पर्पस यूज करते हुए हमें यहाँ पर एग्जाम में ये शो करना है. डायग्राम कैन बी अल्टर्ड. आप चाहें तो ये डायग्राम बनाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, काम चल जाता है. दिस इज द 6 inches डिस्टेंस. सो इंचेस, ये 6 inches. इस डायग्राम को बनाकर भी हम एग्जाम में अपना प्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब्जेक्ट में हमें एज इट इज जो बुक में डायग्राम दिए उनके रिक्वायरमेंट नहीं है. स्केलेटन डायग्राम्स यू कैन यूज इट नाउ. जहां पॉसिबल हो वहां आप डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम इज अ गुड इम्पैक्ट इन द एग्जामिनेशंस. रीजन इज दैट थ्रू द डायग्राम्स आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव राइट अबाउट द टॉपिक. और डायग्राम से आंसर की लेंथ भी इंप्रूव होती है. सो ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम जहां पॉसिबल हो वहां पर आप बनाएं. नंबर ऑफ पेजेस को फिल करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना हमें, क्योंकि आंसर्स में लेंथ होनी चाहिए और लेंथ को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग डायग्राम को यूज करते हैं. सो बड़े अच्छे से आप ये प्रेजेंटेशन यूज करते हुए लिखिएगा. एक बात का विशेष और ध्यान रखिएगा, जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, तो सबसे पहला क्वेश्चन चाहे किसी भी नंबर पर क्यों नहीं हो, चाहे 30 नंबर पर हो चाहे 29 नंबर पर हो, उससे कोई फर्क नहीं है. पहला क्वेश्चन भी आपको यही करना है, बिकॉज यहाँ पर हम एग्जामिनर को बड़ा अच्छा इंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग सेक्शन बड़ा अच्छा है. अगर कंप्लीट टेस्ट पूछा हुआ तो 8 इवेंट में हम कम से कम 3 to 4 पेजेस का आंसर बना सकते हैं. और जब इतना अच्छा आंसर अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो नेचुरली इसका इंप्रेशन बनेगा और वो इंप्रेशन अदर क्वेश्चंस में भी काउंट करेगा. पूरे सिलेबस की बारीकियों को अगर आप देखें तो पूरा सिलेबस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक तो होता है एकेडमिक सेक्शन, एक होता है स्पोर्ट्स इन द गेम्स टॉपिक सेक्शंस. तो स्पोर्ट्स इन द गेम्स टॉपिक अगर आप देखें तो ये पूरा चैप्टर ही स्पोर्ट्स इन द गेम्स के टॉपिक से बेस्ड के टर्म पर है. और स्पोर्ट्स टीचर्स दे विल चेक द कॉपीज ऑफ योर्स. स्पोर्ट्स टीचर्स को उनके फील्ड में अगर आप इंप्रेस करते हैं आंसरिंग के थ्रू, तो वो आपको इंप्रेस करते हैं एकेडमिक वाले टॉपिक्स में, जहां पर आंसरिंग में बड़ा मार्क्स लेने में हेल्प करता है. सो इंप्रेशन विल बी काउंटेड हियर इफ यू यूज दीज थिंग्स इन द एग्जामिनेशन. दिस इज द 4th नंबर, पार्शियल कर्ल. नाउ पुशअप्स फॉर द बॉयज एंड द मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स. द गर्ल्स विल perform the push-ups whereas the boys will perform the push-ups whereas the girls will perform the modified push-ups. एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि why in the motor fitness test the girls will perform the modified push-ups whereas the boys will perform the push-ups. The reason is that the girls are the less masculine. अगर हम ये पॉइंट को बना लिखते हुए एग्जाम में आंसरिंग करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होगा. आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन द एग्जामिनेशंस. देखिए, पॉइंट इज द कीवर्ड ऑफ द पैराग्राफ. आप जो लिख रहे हैं 4 to 5 लाइन का एक्सप्लेनेशन, उसका ये पॉइंट ही आंसर्स होता है. और कोई भी एग्जामिनर इस पॉइंट को देखकर समझ सकता है कि आपने लिखा क्या हुआ इसके बारे में. सो फ्लो में मार्किंग के लिए हमें ऐसे सिचुएशंस को यूज करना है कि एग्जामिनर जो है वो कीवर्ड को देखते हुए ही अपना आंसर समझ जाए. सो गर्ल्स आर द लेस मस्कुलाइन. दैट इज द रीजन कि यहाँ पर ये मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं. पुशअप्स फॉर द बॉयज. द फर्स्ट इवेंट हियर, द पुशअप्स फॉर द बॉयज. द गर्ल्स, बॉयज ऑन द ग्राउंड. First of all, the persons will lying on the stomach now. Stomach basis पर जिसे बोलते हैं prone positions. Lying on the prone position on the ground. After that, they will lift the body on the basis of the toe and the palms. They will lift the body. Body should be parallel here. After that, they will perform the push-ups. How many it will be counted here? कितने किए हुए वो count किया. So this is the shoulder strength or the shoulder strength का measurement होगा यहाँ से. So this is the purpose of this event now. Whereas the girls perform the modified pushes. Modified, थोड़ा सा modified किया हुआ है. Same situations आई है. The girls will lying on the ground on the prone position. Prone position पे है. After that, knees and the toes will touch on the ground. Knees and the toes will touch. Boys section में क्या होता है? ये knees will not be touch on the ground, but यहाँ पर knees and the toes both will touch on the ground. Same upper body should be parallel here. Now they will use the same procedure here. How many it will be counted here? So ये modified push-ups for the girls. ये चूंकि girls are the less masculine, so knees when the knees will touch on the ground, तो shoulder pressure जो है वो उस level पर नहीं यूज हो रहा है. तो यहाँ पर ये girls की masculine capacity को ध्यान रखते हुए ये modifications किए हुए हैं. Same procedures we will use here, but knees will touch on the ground here on the in this event now. स्टैंडिंग रोल. एक और बात जो जनरली मैंने कुछ बच्चों के आंसर्स में देखी सीबीएसई कॉपी चेकिंग के दौरान, तो कि बॉयज जो है वो बॉयज की इवेंट को लिखते हैं, गर्ल्स जो है गर्ल्स की इवेंट को लिखते हैं. नहीं, दैट इज रॉन्ग. आप इस सेक्शन में 2 पार्ट ए एंड द बी बनाते हुए पुशअप्स फॉर द बॉयज एंड द मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स दोनों ही इवेंट को लिखना जरूरी है. ये ध्यान रखिएगा. नाउ
Standing broad jump. I think so. Have you performed the standing broad jump in the schooling life? क्या होता है? The lane are given. Single lanes are drawn on the ground. The person will stand here. Some measurements are shown. 1 meter, 1.5 meter, 2 meter, 2.5 meter. Some measurements are shown on the ground. Now, person will swing the body, get the momentum and forcefully jump it now. Running and the steppings are not allowed in this event. Running and the steppings are not allowed in this event. Person stand properly and swing the body and get the momentum and forcefully jump it now. This is the procedures. यहाँ से ये jumping arrow लगाया, ये शो किया distance. Distance कितना हो रहा है? Distance will be measure ये है. Explosive power of the thighs we will measure through this event. So this is the purpose of this event now. Standing broad jump. This is the standing broad jump. You can write the measurement in the examination also, and you can make the good diagrams in the exam. ये ध्यान रखिएगा. You can use this diagram in the examination. Standing broad jump, and after that the last event agility. It means 4 into 10 meter shuttle run. Shuttle run. 2 lanes are drawn on the ground. 2 lanes are drawn on the ground in between the distance of 10 meter. 10 meter के distance पर, this distance is 10 meter. 2 लाइन को ड्रॉ किया हुआ है. Starting and the finishing line, both the lines are same in this event now. Person will stand here. The persons will go. 2 plastic cone we will place on this line. 2 plastic cone we will place on this line. Now, persons will go pick up the plastic cone and keep on this place. Again go and pick up the plastic cone and keep on this place. The time will be taken now. Directions को यूज किया तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा और ये डायग्राम हमारा बड़ा अच्छा बन जाता है एग्जाम में. This is the administrations. You can show this diagram in the examinations. You can make this diagram in the examinations. Standing broad jump, shuttle run. 4 into 10 meter distance is given. To know the agility or the speed, we will use this event now. ये इसके purpose है agility. It means quickness. फुर्ती से हम बोलते हैं agility. It indicates turning capabilities of the persons. So how to turn quickly on this sport, on this point, the rest is given. Speed and the agility, both the component we can assess through this event. So these are the 8 event procedures. Number 3rd section, administration और procedure में इन 8 event के description को use किया डायग्राम के थ्रू. तो आप देखिए आंसर के लेंथ को आप कितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में. टाइम का ध्यान रखिएगा. स्केलेटन डायग्राम फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं, सो इनको आराम बड़े इजी वेज में एग्जाम में बनाइए और लेंथ को भी ध्यान रखते हुए बड़े अच्छे से फोकसिंग कीजिएगा. आफ्टर दैट 8 इवेंट के डिस्क्रिप्शन के बाद नंबर 4th पॉइंट आता है टेस्ट स्कोर और रिजल्ट. टेस्ट स्कोर और रिजल्ट जब आप लिखेंगे तो क्या होता है, जनरली टेस्ट स्कोर में क्या होता है, जितने भी इवेंट हम लोगों ने परफॉर्म किए इन सब इवेंट के बेसिस पर डेटा कलेक्शन हुआ है, क्योंकि हर बच्चे का डेटा डिफरेंट होगा. सो इन डाटास को हम क्या करते हैं, यहाँ स्टैटिकल फार्मूलाज मीन मोड मीडियन परसेंटाइल टी स्कोर क्वार्टर डेविएशंस इन सबको यूज करते हुए एक परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं और फिर उसके बाद रिजल्ट को शो करते हैं. हमें इस सब कुछ में ये सारा प्रोसीजर रिजल्ट में किस प्रकार से यूज करना है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हम स्टैटिकल फार्मूलाज को यूज नहीं करते हैं और सिंपल से लैंग्वेज में भी हम एग्जाम में ये बड़ा अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं. किस प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ द अबो इवेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट द नॉर्म्स एंड आफ्टर दैट इवैल्यूएट द motor fitness of the children and find out the categories. Categories are excellent, above average and the below average. 5 categories you will write: excellent, above average, below average and the poor. 5 categories we will write in the examinations. आप देखिए रिजल्ट में भी हम लोगों ने काफी अच्छा स्कोर कर लिया, काफी अच्छी लाइन को यूज कर लिया. सो ये रिजल्ट हम स्टैटिकल फार्मूलाज को यूज किए बिना भी इस प्रकार से रिजल्ट में अपना आंसर्स बना सकते हैं. अब आप देखिए पर्पस, मटेरियल्स और द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, प्रोसीजर्स ऑफ दिस इवेंट स्टेप बाय स्टेप एंड आफ्टर दैट रिजल्ट सेक्शंस. ये 4 हेडिंग को यूज किया तो हम बड़ा अच्छा आंसर एग्जाम में बना सकते हैं. इसका आपको 8 इवेंट को याद करना है कंप्लीटली. यू कैन ब्रेक द सीक्वेंस की जरूरी नहीं है. सीक्वेंस में चाहता हूँ 8 नंबर पर जो इवेंट है वो आप पहले नंबर पर लिखिए. सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है, बट 8 इवेंट मस्ट बी रिटन इन एग्जामिनेशंस. 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज होती है. कभी 5 मार्क्स में एक गलती का ध्यान रखिएगा,
सपोज करो 8 इवेंट हैं और कोई बच्चा कंफ्यूजन में या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए और एक दो इवेंट शायद वो जो एग्जैक्टली इवेंट है वो नहीं लिख पाए और यहाँ कुछ दूसरे इवेंट को यूज कर ले, तो ये ध्यान रखिएगा एग्जामिनर नेगेटिव मार्किंग की और आपको ले जा सकते हैं। सो यू मस्ट नो ऑल द इवेंट। सिंगल इवेंट पर पर्पज पर क्वेश्चन किसी भी इवेंट से एग्जाम में बनने की प्रोबेबिलिटीज है। इवन 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनता है, राइट द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वन आइटम ऑफ द मोटर फिटनेस टेस्ट। 3 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन बनेगा तब हमारा आंसर 1.5 पेज में बड़े आराम से, चाहे बुक में 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया हो पर एग्जाम में 1.5 पेज में हमारा आंसर बनेगा। वो किस प्रकार से, मैंने आपको सिस्टम बताया हुआ है। कोई भी एक इवेंट, सपोज करो यही इवेंट है, पर्पज ऑफ द इवेंट, पर्पज क्या है, टू नो द agility or the speed of the children the test will design, so this is the purpose। इक्विपमेंट और मटेरियल की लिस्ट बनाया, लिस्ट में क्या होगा वही सब कुछ बनाया, चौक पाउडर, मेजरिंग टेप हुआ, 2 प्लास्टिक कोन्स वी आर रिक्वायर्ड, स्टॉप वॉच, ये सब कुछ यूज किया तो हम मटेरियल की लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रोसीजर्स ऑफ दिस इवेंट एंड द टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट स्कोर, ये 4 सीक्वेंस में यूज करें तो हम बड़ा अच्छा आंसर सिंगल इवेंट पर भी बना सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में हम डिफिट नहीं खाते हैं अगर हम सिस्टम को जानते हैं तो। सो दिस इज द सिस्टम टू राइट अ टेस्ट इन द एग्जामिनेशंस। सो दिस इज द फर्स्ट नंबर टेस्ट। After that, second number test, measurements of cardiovascular fitness test is given. 2 tests are given. CBSE बोर्ड की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो you can check it now. Howard step test oblique Rockport 1 mile test is given now. अब आप देखिए यहाँ पर ऑब्लिक का मतलब कहता है either this one or this one now, कोई भी एक आप कर लें। पर ये गलती हुई थी कुछ बच्चों से कि उन्होंने हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किया पर एग्जाम में रॉकपोर्ट पूछा हुआ है, कुछ बच्चों ने रॉकपोर्ट किया हुआ तो हार्वर्ड स्टेप भी बाय नेम पूछा हुआ है। हमें दोनों ही टेस्ट 100% कंप्लीट करने हैं क्योंकि एग्जाम में 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स में सभी प्रकार के क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में आ चुके हैं। सबसे पहला टेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड नाम के पर्सन ने 1943 में ये टेस्ट डिजाइन किया था। The test is designed by the authors in 1943. उन्होंने किस प्रकार से यूज किया हुआ है, 16 inches height for the girls and the 20 inches height for the boys. We will use the stool of the bench in this test now. स्टूल की एक बेंच जो है जिसकी हाइट स्पेसिफाइड की हुई है, 16 इंचेस हाइट फॉर द गर्ल्स एंड 20 इंचेस हाइट फॉर द बॉयज। वो एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकता है इस प्रकार से कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टूल फॉर द गर्ल्स फॉर द बॉयज। ये ध्यान रखिएगा, ये हमें बारीकियां भी याद रखनी है। 16 inches height for the girls and 20 inches height for the boys. We will use the stool of the bench and after it, on this stool of the bench, the persons will perform the stepping. Stepping किस प्रकार से, 1 second up, 1 second down, in a 2 second, 1 step to be performed. In a minute, 30 step, 5 minutes continuously, the persons will perform the stepping on this stool now. After the 5 minutes, the object will take the rest. It means in the 5 minutes, 150 steps to be performed. It means after the 150 steps, the object will take the rest. Rest, it means he will sit on the chairs. And after that, we will count the pulse rate. After 1 minute, rest is given for a 1 minute. And after 1 minute, we will count the pulse rate of the object. Pulse rate किस प्रकार से, हर 30 सेकंड के इंटरवल में हमें पल्स रेट काउंट करना है। 1 मिनट के बाद 30 सेकंड तक पल्स काउंट करना है। इट मीन्स 1 to 1.50 मिनट, 30 सेकंड का जो टाइम होगा वो ये ड्यूरेशन होगा। सो इस ड्यूरेशन में पल्स काउंट किया गया। अगेन द पर्सन विल सिट ऑन द चेयर्स फॉर अ 30 सेकंड तक फिर बैठेगा। इट मीन्स 2 मिनट टाइम हो चुका है। एंड अगेन विल काउंट द पल्स फॉर ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर अ 30 seconds. It means 2 to 2.50 minute. Again the person will sit on the chair for a 30 seconds and again we will count the pulse rate of the object for a 30 seconds. It means 3 to 3.50 minute. It means after the 150 step, the object of the persons will sit on the chair for a 1 minute. After 1 minute, we will count the pulse rate. In between, the timing 1 to 1.50 minute, 2 to 2.50 minute, and 3 to 3.50 minute. In these 3 timings, we will count the pulse rate of the object, and after that, all these values we will put up in the formulas. Formulas are given now. देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर फॉर्मूला। लॉन्ग टर्म फॉर्मूला इज गिवन नाउ, 100 into total test duration in second upon 2 into sum of the heartbeat in recovery period. रिकवरी पीरियड में जो हार्ट बीट काउंट की है हम लोगों ने 3 टाइमिंग में, उन तीनों टाइमिंग का यहाँ पर कंप्लीट करना है। ये दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर बेस्ड होकर के एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स
3 pulse we will count here. So some of the heartbeat in recovery period. Recovery period may it means 1 to 1.50 minute, 2 to 2.50 minute and 3 to 3.50 minute. In these three timing जो हम लोगों ने pulse count किए उनका sum किया यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉर्मूला में क्या वैल्यू बनती है 100 into total duration in second. टोटल टेस्ट ड्यूरेशन क्या थी 5 मिनट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सो 300 सेकंड. इट मींस 100 into 300 अपॉन 2 into 3 टाइमिंग की जो पल्स उनको यूज किया, तो यहाँ पर ये स्कोर निकलता है और स्कोर को हमें यूज करना पड़ता है इस टेस्ट में. सो दिस इज द वे टू राइट द टेस्ट इन द एग्जाम. आप देखिए वही सब कुछ यूज किए यहाँ पर हम लोगों ने. सिस्टम क्या बोलता है पर्पस. व्हाट इज द पर्पस? टू नो द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ऑफ द पर्सन. दिस इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट. मटेरियल की लिस्ट, इस इवेंट में क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है. सो स्टूल, बेंच, व्हाटएवर, सो स्टॉप वॉच इज रिक्वायर्ड, पेपर, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ को हम लोगों ने मटेरियल की लिस्ट में यूज किया हुआ है. 3rd नंबर प्रोसीजर्स को यूज किया हुआ है एंड देन रिजल्ट सेक्शंस, वो सब कुछ यूज करते हुए एग्जाम में अपना आंसर बनाया, तो हम अपना आंसर बड़ा अच्छा बेटरली प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस इज द वे. दिस इज द फर्स्ट नंबर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. सपोज करो 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए, तो जब 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, अगर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में आपका आंसर का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. और आंसर का अगर आप ये तरीका यूज करते हैं, ये मेथड ऑफ आंसरिंग यूज करते हैं एग्जामिनेशन में, तो यू कैन इंप्रेस द एग्जामिनर. क्योंकि आंसरिंग इज द आर्ट. बुकिश लैंग्वेज में या बुक में जो टर्म एक्सप्लेन की गई है उनका कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप यूज करते हैं कि एग्जामिनर को देखकर ही समझ में आ जाए कि आंसर क्या लिखा हुआ है. एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप लोगों को वो तरीके भी आने चाहिए कि एग्जाम में हम कितना अच्छा बेटरली प्रेजेंट करें आंसर को, कि एग्जामिनर देखकर ही समझ जाए. तो अगर 5 मार्क्स में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पूछा हुआ है, तो आप किस प्रकार से प्रेजेंटेशन यूज करें. 1 पेज का पूरा प्रेजेंटेशन बनता है किस प्रकार से, आफ्टर द 5 मिनट ऑफ एक्सरसाइजेस. Rest is given. For 1 minute. After 1 minute, pulse will be counted. Heartbeat will be counted for about 30 seconds. It means 1 to 1.50 minute. This durations in minute is called 1 to 1.50 minute. Again the rest is given. Again the pulse rate will be counted. This duration is called 2 to 2.50 minute. Again the rest is given. Again the pulse rate will be counted. It means 3 to 3.50 मिनट. अगर आप ये प्रेजेंटेशन किस प्रकार से, फर्स्ट लाइन में आफ्टर द 5 मिनट ऑफ एक्सरसाइजेस 2 लाइन का एरो लगाया, फिर ये लिखा, फिर 2 लाइन का एरो, तो आप पूरे पेज में ये प्रेजेंटेशन एग्जाम में यूज कर सकते हैं. और आप देखिए कितना अच्छा आंसर है कि इस प्रेजेंटेशन से कोई भी एग्जामिनर समझ सकता है कि आपने लिखा क्या हुआ. तो सब्जेक्टिव लैंग्वेज में अगर हम ये स्टेप भी यूज कर लें लिखने के पार्ट में, तो हम किसी भी एग्जामिनर को बड़ा अच्छा इंप्रेस कर सकते हैं. और इंप्रेशन का फायदा, बेनिफिट मैंने आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज में बताया कि किस प्रकार से वो मिलता है. सो ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन 5 मार्क्स में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट सिंगल टेस्ट पर पूछा हो. सो ये दिस इज द वे टू प्रेजेंट नाउ. आफ्टर 5 मिनट द सिस्टम इज रिक्वायर्ड. Again, now second number test is given now. Rockport 1 mile walk test is given. Rockport नाम के पर्सन ने 1 mile walk test लिखा हुआ है.
1 माइल वॉक टेस्ट, क्योंकि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और लिखने के वर्ड्स यहाँ हमारे पास ज्यादा नहीं है, किसी भी बुक में इतने वर्ड्स नहीं मिलते हैं। सो उस कंडीशन में, क्योंकि इस पूरे टेस्ट में 1 माइल वॉक परफॉर्म करवाना है और 1 माइल वॉक परफॉर्म करवाने में ग्राउंड के ऊपर में हमें बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं बना पाएंगे। सो उसलिए यहाँ पर अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पुट अप हो जाए तो एक ट्रैक का डायग्राम बनाते हुए हमें ये ग्राउंड सरफेस को यूज करना है ताकि हम आंसर की लेंथ को बड़ा अच्छा इंप्रूव कर सकें। Starting, calculate the 1 mile on the ground, on the track now. 1 mile on the track now. 1 mile डिस्टेंस जो है वो उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, कितने राउंड में कंप्लीट करने हैं उसके हिसाब से यहाँ पर हमें ये सब प्रोसेस को यूज किया। कैलकुलेट द 1 माइल ऑन द ग्राउंड और ऑन द ट्रैक आफ्टर स्टार्टिंग इन द फिनिश लाइन यू हैव टू मार्क इट नाउ। असेंबल द स्टूडेंट ऑन द या पर्सन्स ऑन द स्टार्टिंग लाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। द पर्सन्स विल कंप्लीट द 1 mile walk, time will be taken, टाइम को नोट करना है। बट बिफोर द 1 mile walk 2 norms to be collect now, हमें 2 norms बिफोर द 1 mile कंप्लीट करना है। किस प्रकार से? वेट इन द पाउंड्स, फर्स्ट नॉर्म्स वेट इन द पाउंड्स, वेट को पाउंड्स में हमें एलबीएस जिसे हम बोलते हैं पाउंड्स में भी नोट करना है। एंड वन एज इन द ईयर्स, सेकंड नॉर्म्स जो का बिफोर द 1 mile walk वो है एज, किसी भी पर्सन की एज क्या है उस एज को हमें ईयर्स में नोट करना है। सो सेकंड नंबर पॉइंट हियर। After that, after the 1 mile walk, heartbeat will be counted now. 1 मिनट तक किसी भी व्यक्ति की जो परफॉर्म कर रहा है उसकी पल्स काउंट कर लिया। So pulse will be taken after the 1 mile and after that time will be taken now. कितना टाइम लगा? So 100 टाइम सेकंड तक उस टाइम को नोट कर लिया। 4 नॉर्म्स हम कलेक्ट करते हैं, 2 बिफोर द 1 mile walk and 2 आफ्टर द 1 mile walk। ये हमें 4 नॉर्म्स कंप्लीट करने। एंड लास्ट पॉइंट in this now वो है जेंडर, मेल के लिए 1 and the 0 फॉर द फीमेल we will use in the formula because एक कॉमन फॉर्मूला मेल और फीमेल के लिए यूज किया हुआ है। सो मेल के लिए हमें 1 यूज करना है, फीमेल के लिए 0 यूज करना है ताकि हम एग्जाम में उस कॉमन फॉर्मूला को लिखते हुए भी अपना काम चला सके। नाउ टू फाइंड आउट द VO2 max, वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन मैक्सिमम लंग्स ने क्या गेन किया इस 1 mile walk में। सो टू नो द VO2 max in this test now, किल ने जनरेट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द VO2 max इन द ब्रिटेन में किल ने एक ये फॉर्मूला जनरेट किया हुआ है। 1987 में ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्या था? 132.853 माइनस 0769 इंटू वेट माइनस 0.3877 into age plus 6315 into gender minus 3.2649 into time minus 0.1565 into heart rate. This is the equations. Now we will put all these values in these equations to find out the VO2 max. VO2 max निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्मूला, चूंकि इस फॉर्मूला पर बेस्ड आज तक कभी क्वेश्चंस पुट अप नहीं हुआ है, पर मैंने देखा अभी सैंपल पेपर को कि वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार चूंकि सिलेबस का ट्रेंड चेंज हुआ है, पेपर का ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है और हमें हर वो चीज जो आज तक के इतिहास में पुटअप नहीं हुई है उन पर भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो हमें ये फॉर्मूला भी याद करना होगा इस बार। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द VO2 max। न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इस पर, चूंकि कैलकुलेशन टिपिकल है, टाइम इज रिक्वायर्ड, सो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, दिस इज द कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल द स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस फैकल्टीज। ये साइंस स्ट्रीम, इन तीनों पर एक कॉमन सब्जेक्ट है और क्वेश्चन में कभी भी इतना लेंथ या डेप्थ नहीं होगी कि एक साइंस का बच्चा उस क्वेश्चन को अटेंड कर ले बड़े अच्छे से, पर एक कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा उसे उस लेवल पर नहीं कर पाए। सो बार डेप्थ नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, कैलकुलेशंस टिपिकल है, सो टाइम इज रिक्वायर्ड। सो नेचुरली यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला मिल सकता है एग्जाम में। व्हाट इज मिसिंग इन दिस फॉर्मूला, ये हमें मिल सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस, लेकिन इस पर कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनेगा, ये मेरा अजम्पशंस है। बट हमें फॉर्मूला फिर भी याद करना है। ये दिस इज द रॉकपोर्ट 1 mile टेस्ट। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है तो फिर आप उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यूज कर सकते हैं। एडवांटेज,
दिस टेस्ट वी कैन अरेंज इन सो मेनी पीपल्स इन वन टाइम। एक साथ हम काफी सारे पर्सन पर ये टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो लेस ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड एंड लेस ऑब्जर्वेशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि 102 इंस्ट्रक्टर भी ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें ये सब कुछ एडवांटेज में यूज करना है एंड डिसएडवांटेज है वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज को यूज करना है हमें एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में। सो दिस इज द रॉकपोर्ट, क्योंकि बोथ द टेस्ट वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों ही टेस्ट को हमें प्रिपेयर करना है। बाय नेम एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और बाय नेम क्वेश्चन से पूछा हुआ है, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब either दिस वन और दिस वन होता है, लेकिन हमें दोनों ही टेस्ट प्रिपेयर करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल या किसी प्रकार से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटीज है। आफ्टर दैट third number test is given. In the test is not given, but simple calculations of fitness index is given now. Calculations of fitness index, it is a part of the Harvard step test. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में फॉर्मूला देखा था आप लोगों ने लॉन्ग टर्म फिटनेस इंडेक्स का, यहाँ पर शॉर्ट टर्म फिटनेस इंडेक्स पर ये कैलकुलेशंस ऑफ फिटनेस इंडेक्स को यूज किया हुआ है। सेपरेट टॉपिक इज गिवन इन द करिकुलम, ये अलग से एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है, वहां पर नहीं है। सो यहाँ पर अलग से ध्यान रखिएगा। सिर्फ फॉर्मूला इज गिवन नाउ, फिटनेस इंडेक्स इसको शॉर्ट टर्म में क्या दिया हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड, जो 300 सेकेंड्स जो था वहां यहाँ यूज किया हुआ है। इट मीन 5 मिनट एक्सरसाइज जो यूज की है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में वो 300 में काउंट होगी इंटू 100 अपॉन 5.5 into pulse counted between 1 to 1.5 minute after exercises. It means first time पर first 30 सेकंड पर जो पल्स रेट काउंट की है उस ड्यूरेशन को यहाँ पर यूज किया हुआ है। Only the one single pulse is counted here now. सिंगल टाइमिंग पल्स ही काउंट की गई है, मतलब यहाँ पर 5.5, 2 की जगह 5.5 यूज किया हुआ है। ये 5.5 है, किसी बुक्स में 5.0 लिखा हुआ है। सो करेक्ट इट नाउ। अगर आपकी बुक में ऐसा मिल जाता है तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक है। सीबीएसई करिकुलम को चेक करेंगे तो वहां पर 5.5 ही दिया हुआ है। सो 5.5 इंटू पल्स काउंटेड ऑफ 1 to 1.50 मिनट आफ्टर एक्सरसाइजेज। सिंपल कैलकुलेशंस आर गिवन। इस पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज पर क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में और मिलने की प्रोबेबिलिटीज भी है। सो दिस इज द थर्ड नंबर टेस्ट इन दिस नाउ, whereas the fourth number test is given. सिस्टम आप समझ चुके हैं और सिस्टम को यूज करते अपना आंसरिंग करना है। Rickley and the Jones senior citizen test is given now. सेम टेस्ट यू विल राइट इन द प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल में भी हमें लिखना होता है ये टेस्ट, सो ये भी ध्यान रखिएगा, हमें वहां पर भी ये टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं नाउ। लेकिन आई थिंक सो इस बार के सिलेबस में ये रिमूव हो चुका है। इस नए करिकुलम में अभी फिलहाल रैशनलाइज जो सिलेबस आया हुआ वहां पर ये फाइल में से रिमूव चुका है, पर आपकी थ्योरी सब्जेक्ट में है, ये ध्यान रखिएगा नाउ। Rickley and the Jones सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इज गिवन। Rickley and the Jones नाम के पर्सन जिन्होंने ये सीनियर सिटीजन पे टेस्ट को डिजाइन किया हुआ है। टू नो द फिटनेस ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन, द पर्पस इज गिवन नाउ। सो पर्पस में आपको ये यूज करना है। नंबर सेकंड, मटेरियल्स और द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, व्हिच मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑन द ग्राउंड। वी कैन प्रिपेयर द लिस्ट। इवेंट को देखते हुए हम लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट द फर्स्ट टेस्ट इज गिवन, चेयर स्टैंड टेस्ट इज गिवन। चेयर स्टैंड क्या होगा, द वुडन चेयर इज गिवन इन ऑल द इवेंट, द वुडन चेयर्स आर गिवन नाउ। क्योंकि हम जानते हैं ओल्डेस्ट पर्सन की फिटनेस को मेजर करने के लिए हमें इवेंट बहुत सिंपल और सॉफ्ट ही यूज करना है, और वही राइटर ने यहाँ पर किया हुआ है। क्योंकि उनकी फिटनेस को चेक करने के लिए हम शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस तो इतना हैवी इवेंट को यूज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी इवेंट को यूज किया हुआ है, और उनके डिस्क्रिप्शंस और हमें एग्जाम में किस प्रकार से लिखने हैं। द फर्स्ट टेस्ट इज गिवन, चेयर स्टैंड टेस्ट इज गिवन नाउ। The wood chair is given now. You can write the specific size and the shape of the chairs in the examinations. In case if it is a 3 marks questions, to increase the length of the answers, we can write the measurement of the chair also in the examinations. Now, wooden chair is given. First of all, the oldest person, they will sit on the chairs. After that, they will place the hands on the shoulders by crossing. Cross करना होता है, इस प्रकार से shoulders पे रखे. Now, they will perform the stand and the up on the chairs for 30 seconds. बार बार उठना और बैठना है। Stand and the up on the chair for 30 seconds. 30 seconds में कितना एग्जाम है, कोई भी पर्सन कितनी बार, हार्डली 10, 15, 20, कोई भी एक नॉर्म्स, आप चाहें तो 8, 9, 10 को हाईएस्ट नॉर्म्स को यूज करते हुए एग्जाम में अपना प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। Now, this is the procedures of this test. What we must know, because क्वेश्चन पूछे हुए हैं इन पर, तो यहाँ पर क्या होगा, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, चूंकि बार बार उठने या बैठने में, सिट एंड डाउन, अप एंड डाउन करने में स्ट्रेंथ आर यूज्ड
लेग्स की स्ट्रेंथ लोअर बॉडी पार्ट है, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट में थाइस की स्ट्रेंथ को यूज हो रहा है, सो बार बार सिट इन द अप में, सो उसलिए यहाँ पर दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टेस्ट, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ द टेस्ट विल डिजाइन इन दिस टेस्ट। ये सब कुछ प्रोसीजर यूज किया और बड़े अच्छे से हम अपना आंसर्स बना सकते हैं। नाउ सेकेंड टेस्ट आर्म कर्ल फॉर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। इट मीन्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए आर्म कर्ल को यूज किया हुआ। आर्म कर्ल क्या है? वही सब कुछ। चेयर इज गिवन, वुडन चेयर इज गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओल्डेस्ट पर्सन दे विल सिट ऑन द चेयर्स, आफ्टर दैट दे विल प्लेस द वेट ऑन द हैंड्स। वेट का साइज, वेट स्पेसिफिक वेट इज गिवन। वेट किस प्रकार से? 5 pound weight for the females and the 8 pound weight for the male is given. Weight 5 for the females and the 8 pound weight for the male is given. Now they will place the weight on the hands and after that they will curl the arm. जिस प्रकार से डंबल्स होता है इस प्रकार से कर्लिंग करना है। कर्लिंग how many it will be performed in 30 सेकेंड, इट विल बी काउंटेड। वो हमें काउंट करना है और 30 सेकेंड में जितना परफॉर्म किया वो काउंट होगा। क्या होगा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होगा। इट मींस स्ट्रेंथ के 2 टेस्ट दिए हुए हैं, अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में प्रीवियस टेस्ट चेस्ट स्ट्रेंथ और सेकंड नंबर टेस्ट इज कॉल्ड द अपर बॉडी स्ट्रेंथ। ये 2 टेस्ट हैं स्ट्रेंथ के यहाँ पर। नाउ नंबर थर्ड, चेयर सिट इन द रीच। सिट इन द रीच इज नॉट गिवन, चेयर सिट इन द रीच। ध्यान रखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज। चेयर नहीं है, चेयर है यहाँ पर। सो चेयर आर यूज्ड हियर फॉर द oldest persons. First of all, the oldest persons they will sit on the chairs. After that, they will one leg should be rolled, one leg should be straight. Now, same procedures we will use now. Leg should be straight, knee should not be bent. After that, the oldest person they will touch the fingers on the toes and the heel. Heel and the toes are the base. It is called the neutral point. If the fingers goes forward, plus measurement will be done, whereas the fingers, if it is backward, minus measurement. It means plus and the minus measurement will be done in this now. To know the lower body flexibility का ही ये टेस्ट दिया हुआ है. So this is the purpose of this test. This is the third number event, flexibility का lower body चुका, तो अब क्या बचा? upper body flexibility का ये. This is the back scratch test for the upper body. Back scratching किस प्रकार से? Now place the hands in the back side like that way and after that try to touch the fingers. Fingers are cross or not cross? If the fingers are cross, अगर ये fingers आपस में cross होती है तो क्या होगा? प्लस मेजरमेंट. कितना क्रॉस हो रही है वो मेजरमेंट हमें यूज करना है, प्लस मेजरमेंट होगा. बट इफ द फिंगर्स आर नॉट क्रॉस, गैप बिटवीन द फिंगर्स, दिस इज कॉल्ड द माइनस मेजरमेंट ऑफ द पर्सन. ये ध्यान रखना है. इफ द फिंगर्स आर टच, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट. सो ये जीरोस वैल्यूज वी कैन राइट इन द नॉर्म्स टेबल. सो दिस इज द बैक स्क्रैच टेस्ट. बैक स्क्रैचिंग है. एक बच्चे ने आंसर में लिखा बैक ईचिंग टेस्ट. नो, इट्स नॉट अ बैक ईचिंग, बैक स्क्रैचिंग है. और बैक स्क्रैच टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर द अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. सब्जेक्ट में वो कुछ बातें और भी हैं जिनका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि गाइडलाइन में दिया हुआ है. स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, सेंटेंस मिस्टेक्स इट नॉट बी मेजरेबल या ऑब्जर्वेबल बाय द एग्जामिनर. अगर सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस का मीनिंग अगर समझ में आ रहा है बाय द वे, तो वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है. और यहाँ की गाइडलाइन में थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है. सीबीएसई ने लिखा हुआ है ये गाइडलाइन में कि वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग्स में मतलब क्या को फोकसिंग नहीं करें एग्जामिनर. थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है वे ऐसा होता है तब भी एग्जामिनर उस प्रकार से मार्किंग नेगेटिव की ओर नहीं ले जाते हैं. अगर बस वर्ड समझ में आता है देख करके तो उस पर वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बैक स्ट्रेचिंग के बाद चलते हैं फिफ्थ नंबर इवेंट, वो है 8 फुट अप एंड द गो टेस्ट. 8 foot up in the go test. Wooden chair is given. First of all, the oldest person they will sit on the chair. After that, we'll count the 8 foot. 8 foot distance we'll count it now, and we will place the plastic cone on this place. 8 foot distance पर हम लोगों ने एक प्लास्टिक कोन को मार्क कर रख दिया वहां पर. Keep on the plastic cone there. Now, person will stand when the instructor give the signal. The persons, those who are sitting on the chair, they will stand, go. Pick up the plastic cone and keep on this chair. यहां से उठना है, जाना है, ये पिकअप किया और वापस में यहां रखा. Keep on this place. The time will be taken. देखिए यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्पीड. जब टर्न किया तो क्या होगा? Agility and the balance while moving. All the component we can assess through this event. So these are the component we can assess through this event. So purpose में ये हमें यूज करना है. Agility, it means mainly agility we will measure, but speed and the balance while moving, they are the additional component we can assess through this event. So this is the procedure. 1 marks में भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, explain the 8 foot up and the go test. Then
In that conditions, we are not required the system because 1 marks में system की requirement नहीं है. Directly procedures we can write in the examinations in a 2, 3, 4 lines we can write this system in the examinations because 1 marks में हमें इतना ही आंसर की requirement होती है. 3 to 4 lines answer are sufficient in the examination. पर चूंकि अब MCQ आता है, लेकिन पेपर को जब स्टडी किया तो मैंने देखा है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको मिलते हैं, तो वहां पर भी 1 मार्क्स में डिवीजन में किया हुआ है, सब डिवीजन किए हुए क्वेश्चंस के, तो वहां पर हमें ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं मे बी. सो ध्यान रखिएगा. वेयर इज नंबर लास्ट इवेंट 6 minute वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंड्योरेंस. एरोबिक एंड्योरेंस या स्टेमिना में विल मेजर थ्रू दिस इवेंट एंड इसको चेक करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज की हुई है. ये इतना मेजरमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. हम चाहे तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एक लोन को इस प्रकार से एग्जाम में बना सकते हैं. मेजरमेंट्स ये सभी कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. किस प्रकार से द 50 by 50 मीटर लोन इज गिवन या 50 by 60 मीटर लोन इज गिवन, आप चाहे 60 या 50 मीटर को कोई भी एक डायग्राम कोई भी एक मेजरमेंट को यूज कर सकते हैं. 50, 60, 70 जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा आप यूज कर सकते हैं. 60 meter and the 40 meter. Suppose 40 meter loan is there. No, oldest persons. First of all, the oldest persons, they will stand on the starting line. This is called the starting point. Surrounding these, the oldest person, they will start the walking. 6 minute walk करना है ये. After 6 minutes, we will count the distance. कितना distance उन्होंने measure किया, कितना distance उन्होंने walk किया, so distance will measure. We can make this diagram in the examinations. Diagram में ये सब कुछ ये यार्ड्स में जो दिया हुआ है वही सब कुछ हम प्रेजेंट करें, ये जरूरी नहीं है. हम चाहें तो अपने हिसाब से भी अपने हिसाब से अल्टर्ड या अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते हुए डायग्राम को हम बना सकते हैं. क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है. 5 मार्क्स में अगर कंप्लीट टेस्ट पूछा हुआ है तो वहां हमें इतना सब कुछ यूज नहीं करना है. कंबाइंड पर्पस ऑफ द टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट का जो पर्पस है वो टू मेजर द मोटर फिटनेस या फिजिकल फिटनेस ऑफ द ओल्डेस्ट पर्सन. दिस इज अ कंबाइंड पर्पस ऑफ दिस टेस्ट. तो हमें इस प्रकार से अपना आंसर्स प्रिपेयर करना है ताकि हम बहुत अच्छा आंसर बना पाए. क्योंकि कुछ बच्चे अगर सिंगल इवेंट के सिस्टम्स को जनरेट करते हुए एग्जाम में 5 मार्क्स का आंसर लिखेंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी और इतना टाइम भी हमें इस एक सिंगल क्वेश्चन में यूज नहीं करना है. क्योंकि हमारा जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट बनता है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट का बनता है एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर में, और 15 मिनट में अच्छे से टाइम को डिवोट करते हुए आपको ये आंसर्स कंप्लीट बनाना है. वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा. वी कैन एक्सीड द वर्ड लिमिट. लेकिन पहला ही क्वेश्चन अगर आप इस क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड अगर आने पर करते हैं तो हम एक अच्छा इंप्रेशन काउंट कर सकते हैं एग्जामिनर के मन में. सो दिस इज द चैप्टर नंबर 6. All the terms which are written in this chapter, all they are the technical terms. हर चैप्टर में इस चैप्टर के सभी टेस्ट की जो इवेंट्स हैं उनके पर्पस आपको स्पेसिफिकली याद करने हैं, क्योंकि इस पर्पस पर आपको 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा. डेफिनेटली यहाँ पर हमें 1 and 2 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे. This is the chapter number 6, the test and the measurement. All the steps are required to prepare these chapters. So this is it will be easy chapter if you learn all these contents in the examinations room. Word to word language which are written in the booklet, in the descriptions, we are not required this language word to word. You can modify it, you can alter the descriptions like that way in the examinations. You can make your answers in the examinations like that way, but we must know all the contents or the events which are written in this book. One more things I want to tell you. Motor fitness test. Last year it has been modified in the booklet now. Before last year the AHPER motor fitness test was given now. AHPER test is not a part of syllabus. वो हमारे syllabus का part नहीं है. Different events, some of the events are same, but some other different events are given in the AHPER motor fitness test. Especially the motor fitness tests which are given in the curriculum. These are the event. ये event ही ध्यान रखिएगा और इन event को ही एग्जाम में हमें प्रेजेंट करना है. These are the event in this now. 8 events हैं, 7 for the girls and 7 for the boys. Because boys के लिए ये event, girls के लिए ये event है separately. 7 for the boys and 7 for the girls. This is the level. This is the preparation step which we are required in this chapter.